Sukhjeet ma'am, please allow me to screen sharing. You can do, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Yes, Vite. So qualitative measures or tools. Its first part we have to do. Little bit introduction was given, but I am going to do it again. It is about margin requirements. Okay? Increasing या imposing margin requirements या simply margin requirement of loans. Sometime word comes margin requirement of loans. You can write in the book also margin requirements of loans. LOANS. अब इसका मीनिंग क्या होता है? मार्जिन का मतलब है कि when any person goes to the bank for taking loan, तो bank always keeps some collateral, takes some collateral from that person and keeps that collateral as a security. Collateral मतलब कुछ भी security which is kept by the bank itself. ठीक है? So that why is this security kept? So that that person should not get indulged in any kind of fraudulent activity. बैंक का पैसा लेके ना भाग जाए. In order to keep an eye, keep a vigil on that person, security is kept. Some collateral is kept by the bank. कभी भी कोई भी जो formal institution है, it never gives loan to anyone without keeping collateral. This thing we should always remember. तो collateral में क्या होता है? Collateral में some important valuable assets के ownership के papers can be there. Some valuable asset itself can be there. जैसे मान लो किसी की फैक्ट्री है तो उसकी ओनरशिप के पेपर्स हो सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हो सकते हैं, घर की रजिस्ट्री के पेपर हो सकते हैं, कोई गोल्ड ज्वेलरी वो हो सकती है, कोई जेम्स हो सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, मतलब कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए. ठीक है. अब नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीआई टेल्स कमर्शियल बैंक्स to provide loan to people after keeping collateral, and that loan which is being granted to the person, that should be less than the value of the collateral. That loan should be less than the value of the collateral. मान लो किसी पर्सन ने 100 रुपीज का कोलेट्रल रखा है, सिक्योरिटी रखी है, तो वो पर्सन को 100 रुपए से कम का ही लोन दिया जाएगा, 100 से ज्यादा का लोन नहीं दिया जाएगा. ठीक है. बीच का जो डिफरेंस है, मान लो किसी पर्सन की 100 रुपीज सिक्योरिटी रखी, उसको लोन दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज का, तो बीच के 30 रुपीज कहाँ गए? किसी ने अपनी महंगी चीज रख रही है और बदले में कम वैल्यू का लोन ले रहा है, तो बीच का जो मार्जिन है दैट इज 30 रुपीज. दोज 30 रुपीज विल बी नोन एज margin requirement or margin. Now who decides this margin? This is decided by the RBI. ठीक है. RBI guides the commercial banks to provide loan to the people by keeping some margin, and that margin is the difference between the amount of loan, as is written in the book. It is the difference between the amount of loan and the market value of the security which is being offered by the borrower. ठीक है. आप मेरे पास मान लो 5,000 रुपए के बराबर का अपना कुछ भी वैल्यूएबल एसेट, उसकी ओनरशिप के पेपर कुछ मेरे पास आपने रख दिए, और मैं बदले में आपको 4,500 रुपए का ही लोन दे रही हूँ, तो बीच के 500 जो बचेंगे दैट विल बी नोन एज मार्जिन. ठीक है. अब नाउ व्हाई इज इट डन बाय द आरबीआई? इट इज डन टू कीप एन आई, टू कीप ए चेक. कैसे? नाउ 2 टाइम पीरियड्स अगेन दे आर टू बी ब्रॉट इनटू कंसिडरेशन. मान लो टाइम है इन्फ्लेशन का, तो एट दैट टाइम आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. It wants to inject less money in the economy in the form of loans. ठीक है. तो at that time it guides the commercial banks to increase the margin requirement. मतलब बीच में जितनी वैल्यू का एसेट रखना है उससे काफी कम वैल्यू का लोन देना है लोगों को. That margin, that difference is to be increased at the time of inflation. What will be its effect? जब ज्यादा वैल्यू का एसेट रख के कम रुपए का लोन इज बीइंग प्रोवाइडेड, दैट मीन्स लेस मनी सप्लाई इज बीइंग इंसर्टेड और बीइंग इंजेक्टेड इन द इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है. पर्पज यही है कि लोगों के पास कम मनी जाए, लिबरल लोन ना जाए उनके पास में, और वो ज्यादा खर्च ना कर सकें.
यहाँ पर खर्च करने का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही नहीं है, यहाँ खर्च का मतलब आमतौर पे वी नो लोन्स आर बीइंग एंजॉयड बाय, दे आर टेकन बाय द बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन फिर आगे काम करते हैं, फिर लोगों को आगे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फिर जाके इनकम जनरेशन होती है। तो आमतौर पे उस तरीके से लेना है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई इंक्रीजेस दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंस को बढ़ा देते हैं। तो एज ए रिजल्ट लेस मनी इज गिवन टू द पीपल बाय कमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। On the other side, when there is deflation, deficient demand है, now RBI wants to inject more money in the circulation, in the system. चाहता है कि लोगों के पास more money should go. तो more money कैसे जाएगा? By providing cheap loans. ठीक है, खुले दिल से लोन प्रोवाइड किए जाएं। खुले दिल का मतलब एट लीस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या करता है, इट गाइड्स एंड डायरेक्ट्स द कमर्शियल बैंक्स टू रिड्यूस दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट। उनको कहते हैं कि आप मार्जिन कम रखो, आप ज़्यादा लोन दो। 100 के मान लो 100 का एसेट रख लिया और उसके पीछे सिर्फ 10 रुपीज़ का मार्जिन रखो, 10% का। तो 100 में से 10 रुपये बचाने हैं, बाकी 90 रुपीज़ लोन के तौर पे आप दे दो। तो दैट मीन्स नाउ मोर मनी इज बीइंग गिवन, कमर्शियल बैंक्स आर बीइंग अलाउड टू गिव मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू द पीपल। तो मीनिंग क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन, RBI wants to inject more money in the system, so it guides the commercial banks to reduce the margin requirement, difference को कम कर देना है। And on the contrary, when there is inflation, now money is to be controlled, money supply, less money, RBI wants less money to be injected, so then it guides the commercial banks to increase the margin, ठीक है। And what is margin? Margin is the difference between the value of asset which is being kept as security या collateral and the amount of loan which is being granted by the bank to the person, to the borrower, ठीक। तो सीधा क्या हो गया, डायरेक्टली क्या मीनिंग बन गया दो लाइनों में, इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड, बढ़ा दी जाती है, एंड एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड, ठीक। अब ये क्या होता है, ये आरबीआई सभी के लिए नहीं कहता है कि सब लोगों के लिए ऐसे करना है। जिस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए चाहिए, आरबीआई को जिस पर्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल करना है या एक्सपेंड करना है, ये उसके लिए गाइड करता है। वो मैं अगले पॉइंट में इकट्ठा ही बता देती हूँ। उसके बाद बुक में आगे दिया हुआ ना, टू फ्यू पॉइंट्स आर गिवन, तो आपने वो पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं करना, यू हैव टू गिव इन द फॉर्म ऑफ एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। जो पेजेस मैंने भेजे उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है, ठीक। नेक्स्ट इज आपकी बुक में जो दिया हुआ है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एक दिया ना अदर इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें एक फर्स्ट पॉइंट दिया मॉरल सुएजन, आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट इज गिवन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप दिस पॉइंट। बुक में ये ठीक तरह से नहीं दिया हुआ है, सो अगेन आई एम रीट्रेटिंग, जो पेजेस भेजे हैं वहाँ से आपने करना है। अब सिलेक्टिव के साथ में यू मे राइट क्रेडिट राशनिंग, यू मे राइट हियर वन वर्ड विद pencil or pen, whatever is there with you. Selective credit control means credit rationing, RATIONING, credit rationing। राशन करना, जैसे राशन कार्ड होते हैं ना, राशन डिपो होते हैं, सेम विद द सेम वर्ड, क्रेडिट राशनिंग। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि क्रेडिट राशनिंग में आरबीआई जो है इट गाइड्स द, आस्क्स द कमर्शियल बैंक्स टू कंट्रोल क्रेडिट फॉर पर्टिकुलर सेक्टर्स। नाउ कंट्रोल क्रेडिट फॉर पर्टिकुलर सेक्टर्स का मतलब क्या है कि ये कहता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपने ये सेक्टर के लोग आते हैं अगर आपके पास, तो इनको आपने लोन देना है, और ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लोग अगर आपके पास दे कम फॉर टेकिंग लोन, उनको लोन नहीं देना है। गाइड करता है किसको देना है, whom टू बी गिवन एंड whom लोन इज नॉट टू बी गिवन, सिलेक्ट करता है, ठीक है। इसी सिलेक्ट करने के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है राशन करना। राशन करने का मतलब कंट्रोल करना। आपको थोड़ा बहुत आपने पीडीएस सिस्टम में पढ़ा होगा ना 9th-10th में, राशन कार्ड के ऊपर क्या होता है, इतने फैमिली मेंबर्स हैं, इतनी एज है, उनको इतने ग्रेन देना है, इतना फ्लोर देना है, इतनी चीनी देनी है, इतना ऑयल देना है, ये सब मतलब क्वांटिटी को फिक्स करना, ठीक है। तो सेम ही यहाँ पर है कि क्रेडिट को कंट्रोल करना, राशन करना मीन्स आरबीआई गाइड्स द बैंक्स कि some particular sectors are to be given some loan liberally and some particular sectors are not to be given the loans. So commercial banks, since they are associated with the RBI, so they have to follow all the guidelines. अब जैसे for example इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो RBI wants agriculture to be given, agriculture sector to be given more loans। मतलब व्हेन फार्मर्स गो टू बैंक्स, तो उनको बड़े आराम से लोन देना है, उनको इनकरेज करना है फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, ठीक। तो अब क्या किया जाएगा, आरबीआई विल आस्क द कमर्शियल बैंक
कि व्हेन फार्मर्स कम टू यू फॉर टेकिंग लोन तो यू हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, कि जब आपके पास कोई फार्मिंग सेक्टर के लोग आए, फार्मिंग के काम में मनी वो लगाना चाहते हैं, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लो ट्रैक्टर खरीदना है या फार्मिंग से रिलेटेड कुछ और मशीन खरीदनी है, ट्यूबवेल लगवाना है, कोई भी काम है उससे रिलेटेड, उस चीज़ के लिए इफ़ दे आर कमिंग टू यू तो आप उनको लोन प्रोवाइड करो। इसका मतलब हो गया आरबीआई वांट्स दिस एग्रीकल्चर सेक्टर टू गेट मोर एंड मोर डेवलप्ड, उनको लोन देने हैं। मीन्स पूरे इकोनॉमी का जो टारगेट है भी एग्रीकल्चर सेक्टर इज टू बी एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड। तो कमर्शियल बैंक के पास व्हेन फार्मर्स कम तो दे आर प्रोवाइडेड लोन एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, ऑन दी अदर साइड आरबीआई चाहता है, मान लो कह रही हूँ कि कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री के पीपल इफ़ दे आर कमिंग फॉर टेकिंग लोन, मान लो उनको लोन नहीं देना है, उनको डिस्करेज करना है, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाना है और इंडस्ट्री को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, तो देन इट गाइड्स द कमर्शियल बैंक्स कि इफ़ पीपल फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कम टू यू फॉर टेकिंग लोन तो दे आर नॉट टू बी प्रोवाइडेड। अब नॉट टू बी प्रोवाइडेड का मतलब ये तो नहीं है फॉर्मली दे कैन नॉट रिफ्यूज, बैंक किसी को मना कर ही नहीं सकता है। तो क्या करता है इनडायरेक्टली, क्या करता है कमर्शियल बैंक इज एडवाइज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा बढ़ा के आप बताओ उनको, कमर्शियल बैंकों को कहा जाता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के पीपल इफ़ दे आर कमिंग तो यू चार्ज वेरी वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देम। जब वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग टोल्ड तो लार्ज स्केल सेक्टर के लोग सोचेंगे, दे विल थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि लोन लें या ना लें, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट वे टू डिस्करेज एनीवन। मना नहीं करेंगे कि, क्योंकि फॉर्मली मतलब लॉफुली तो मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक का फंक्शन ही होता है लोन भी प्रोवाइड करना। तो ये एक तरीका है, दिस इज ए मेथड कि कैसे कंट्रोल करें। तो दे आर टोल्ड कि भी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट इज टू बी गिवन, तो वो लोग फिर नहीं लेते हैं कि बहुत इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, तो कहने का मीनिंग ये है कि जिस सेक्टर को एनकरेज करना होता है फॉर दैट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज्ड टू कीप देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वाइट लो, and the sector which are sectors which are to be discouraged in the sense which are not to be given loan, so for those sectors commercial banks are advised to charge या टू टेल देम अबाउट द वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि उनको आप ये बताओ और दूसरे सेक्टर को आप ये बताओ। नाउ यू सी देयर इज ए काइंड ऑफ व्हाट कैन वी से पार्शियलिटी, है ना, ये हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर ऐसे किया जाता है। तो इसका मतलब ये पार्शियलिटी इज बीइंग डन इंटेंशनली, कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, किस सेक्टर को बढ़ावा देना है किसको नहीं देना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज। नाउ इन दिस, अब अभी जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो मान लो उसके लिए इंटरेस्ट इज केप्ट लो, तो दैट इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट इज ओनली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर रेस्ट ऑल द सेक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर बाकी सभी के लिए वही रेट रहेगा जो रूटीन में है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली फॉर फार्मिंग पीपल एग्रीकल्चरल पीपल उनके लिए ही सिर्फ लोन के ऊपर इंटरेस्ट घटाया जाएगा, बाकी जितने लोग लोन के लिए जाते हैं उनके लिए जो भी नॉर्मल चल रहा है वही रहेगा। ठीक है, जैसे क्लास में मान लो आप मेरी क्लास में आते हो तो मैंने किसी को लोन देना है या कुछ भी ऐसे कोई भी आप सोच लो एग्जांपल, तो मैं किसी दो बच्चों को कहूँ कि हाँ आप मुझे 2 रुपीज़ फाइन दो यूनिफॉर्म डिफॉल्टर होने के लिए और बाकी सारी क्लास 10 रुपीज़ फाइन है। अब मैं क्यों उन दो बच्चों को कम कर रही हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ और मेरे दिमाग में होगा। ठीक है, तो मैं आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन पार्शियलिटी कि मैं उनको कुछ भी मतलब मेरा टारगेट कोई भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल बना रही हूँ, तो मैं उनके साथ और बाकियों के साथ अलग अलग बिहेवियर हो रहा है। ठीक, ऑल आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय माय दैट डिसीजन ऑफ टेकिंग 2 रुपीज़ लोन। तो सेम थिंग इज हियर, सिर्फ एग्रीकल्चर को जाएगा लोन एट लोअर इंटरेस्ट, बाकी सबके लिए रूटीन जो चल रहा है जैसे चल रहा है वही है। तो दैट इज़ वाई जब हम कहते हैं कि ये जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है या ये क्वालिटेटिव है, ये कुछ एक सेक्टर्स को ही अफेक्ट करता है। सेकेंडली एज आई सेड कि मान लो इंडस्ट्रीज को डिस्करेज करना है तो उनसे हाई इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड, तो वो जो हाई इंटरेस्ट है दैट विल बी चार्ज्ड ओनली फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर पीपल, बाकी आम लोगों के लिए सबके लिए नॉर्मल जो रूटीन चल रहा है वही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं। मीनिंग हो गया कि कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को एनकरेज और डिस्करेज करने के लिए, लोगों का मतलब यहाँ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, यहाँ पर मतलब है कि उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या एक्सपैंड करने के लिए व्हेन डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर चार्ज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स on the advice and guidance of RBI, then it is called credit rationing या इसी को कह देते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
आई होप इट इज क्लियर। ठीक, अब इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं आएगा क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज, ये दो पॉइंट्स इकट्ठे ही कर लेते हैं, मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। इसका मीनिंग ये है कि इन आर कंट्री, नॉट इन आर कंट्री, अदरवाइज ऑल्सो इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, ऑल द कमर्शियल बैंक्स दे आर रजिस्टर्ड विद, दे आर एफिलिएटेड और एसोसिएटेड विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. Now suppose if one or two commercial banks, they do not adhere to the guidelines ऑफ द आरबीआई, उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं, जो भी कह रहा है उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं, तो क्या करता है फिर आरबीआई, उनको मॉरल सुएजन करता है। मॉरल सुएजन मतलब उनको थ्रू लेटर्स, थ्रू उनको एडवाइस, पर्सनल एडवाइस हो सकती है ऑफिसर्स की, या थ्रू फॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं, उनको कहता है, उनको गाइड करता है कि भाई यू पीपल डू वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ अवर सिस्टम, ऑफ अवर सेंट्रल बैंक सिस्टम, एंड अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टीज। किसी को समझाना बोलते हैं ना, परसुएशन करना, समझाना किसी को। जैसे क्लास में बच्चे यूनिफॉर्म डाल के नहीं आते तो टीचर क्या करता है, उनको समझाता है भी बेटे यू कम इन यूनिफॉर्म, यू फॉलो द स्कूल यूनिफॉर्म रूटीन, आप शूज़ ठीक से डालो, टाई लगाओ, ये वो सारे फॉर्मली एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ समझाना है कि आप अदरवाइज यू विल नॉट लुक नाइस, you will not look like a student of this school, it does not look like nice in front of 50 students, 2 or students are not wearing uniform, मतलब एक समझाने का तरीका है। ठीक, this is called moral suasion. So RBI guides the commercial banks from time to time, those who do not follow the instruction, उनको समझाता है कि आप follow करिए the instructions of RBI. This part is called moral suasion. On the other side, generally it does not happen, but few exceptions can always be there. in economics भी हम सारे पढ़ते हैं कि exceptions are always there. तो जो बैंक बार बार समझाने के बाद भी in spite of the this guidance of the RBI, again they do not follow, they do not pay attention to the rules and guideline. अब rules और guidelines क्या है कि rules और guidelines तो यही है कि किस सेक्टर को इंटरेस्ट कितना देना है, कितने पे लेना है, लोन लेना है या देना है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या कैसे अपने ऑडिट्स को मेंटेन करके रखो, कैसे अपने अकाउंट्स को, सारे सिस्टम को अप टू डेट रखिए, अपने रिकॉर्ड्स को कैसे अप टू डेट रखिए, यही सारी गाइडलाइंस होती हैं। तो या कोई मतलब करप्शन नहीं करनी है या कोई फ्रॉड नहीं करनी है, इन चीज़ों के ऊपर चेक रखने के लिए यही गाइडलाइंस है। तो अगर कोई बैंक इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस इफ दे डू नॉट फॉलो, तो लास्ट एक्शन जो लिया जाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट है। डायरेक्ट एक्शन मीन्स देन दैट बैंक इज डिसएफिलिएटेड, उसको अपने वो लिस्ट से हटा देते हैं। जैसे आप इसको ऐसे वी कैन अंडरस्टैंड, जितने ये CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं तो दे ऑल हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ CBSE बोर्ड। ठीक है, अगर कोई स्कूल फॉलो नहीं करता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, पहले तो उनको लेटर्स लिखी जाएंगी, भी आप ये ऐसे काम करो, हमारे बोर्ड के मुताबिक ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, बार बार समझाया जाएगा। जो तो मान लेते हैं ठीक है, फिर भी कोई मान लो एक आधा स्कूल होगा जो नहीं मानता है, विच इज़ नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द बोर्ड, तो अल्टीमेट रिजॉल्ट क्या होगा कि एफिलिएशन ऑफ दैट स्कूल विल बी कैंसल्ड। एक यही हो सकता है ना, चलो भी ठीक है, नहीं मानना तो आप जाओ फिर अपने हिसाब से करो। तो सेम थिंग इज हियर, जो बैंक नहीं मानता है बार बार कहने पे भी, फिर अल्टीमेटली उसकी रजिस्ट्रेशन विद द सेंट्रल बैंक सिस्टम दैट इज कैंसल्ड, उसको खत्म कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नाउ दैट बैंक कैन नॉट क्लेम टू बी ए पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब वो एक सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन के रह जाएगा। व्हेन पब्लिक डील्स विद सच टाइप ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, देन दैट डीलिंग विल बी एट द रिस्क ऑफ पब्लिक ओनली। उसमें ना तो कंट्री का कानून कुछ कर पाएगा, ना ही RBI का कानून कुछ कर पाएगा। क्यों? बिकॉज वो बैंक का उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो लोग आपस में फिर कुछ भी करें तो उसमें बैंक का थोड़ी कोई कसूर है। अगर कोई बैंक किसी के पैसे मार ले, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब कोई बन के रह गया, तो दिस इज जस्ट लाइक एनी पार्टी, दो लोगों की आपस की बातचीत है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द RBI दैट कम्स टू एन एंड, बिकॉज नाउ दैट बैंक इज नॉट नो मोर ए पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। बट दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीम पॉइंट, ऐसा होता नहीं है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द लास्ट एक्शन, भी ये भी हो सकता है, अदरवाइज ऐसे कभी हुआ नहीं हमारे कंट्री में। बट ये एक ऐसे बोल सकते हैं एक थ्योरेटिकल पॉइंट है भी, ये अल्टीमेट है कि अगर कोई नहीं मानता है। ठीक, सो नाउ
4 पॉइंट्स हो गए हमारे क्वालिटेटिव टूल्स के. वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन, सेकंड इज क्रेडिट राशनिंग और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, थर्ड इज मॉरल सुएजन एंड लास्ट इज डायरेक्ट एक्शन. ठीक है. अगर आपको पेपर में लिखने के लिए आता है कि राइट अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स, तो प्लीज अवॉइड मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन. आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शनल पॉइंट्स है. मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को. मेन पॉइंट्स आर फर्स्ट टू, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है. सम स्टूडेंट्स वो लिख देते हैं लास्ट वाले पॉइंट, तो ये लॉजिकली ये कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ बस एक इंस्ट्रक्शन है, एक गाइडलाइन है और कुछ भी नहीं है. ठीक. सो नाउ इन ऑल दीज पॉइंट्स, let us now in the book it is given, you can see in the end of your page, credit control instruments of RBI quantitative versus qualitative. ठीक है. पैराग्राफ्स बना के दिया हुआ है. सो प्लीज डोंट राइट इन पैरा, थोड़ा सेपरेट करके लिखना है. यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन इन द मिडल. वन साइड यू कैन राइट क्वांटिटेटिव टूल, वन साइड क्वालिटेटिव. ठीक है. नंबर 1 पे यू हैव टू गिव द डेफिनेशन. मैं बोल देती हूँ एक लाइन डेफिनेशन की, यू कैन नोट डाउन. बाकी के पॉइंट्स पैरा में से यू विल सी, but they are to be written in comparison form. You can write if you want quantitative tools या quantitative measures. These measures influence the quantitative measures influence the total amount of money supply, influence the total amount of money supply in circulation, influence the total amount of money supply in circulation. Right. Now on the other side, qualitative measure side, there you can start with the word qualitative measures affect allocation of credit, between alternative uses. These measures affect allocation of credit between alternative uses. These lines are already there in the pages which I sent ना, उसी से ही बोल रही हूँ मैं, वहाँ भी दिया हुआ है, वही पॉइंट है. ठीक. ये पॉइंट हो गया हमारा डेफिनेशन का. उसके बाद फिर नंबर 2 पे आपने ये पॉइंट्स विच आर गिवन इन द बुक ऑलरेडी आई हैव टोल्ड. फिर आपने दे देना है कि जो होते हैं क्वांटिटेटिव, दे आर जनरल इन नेचर. जनरल मतलब दे अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स, और जो सिलेक्टिव वाले हैं क्वालिटेटिव है, दे आर नॉट इन जनरल, रादर दे आर सिलेक्टिव इन नेचर, मीन्स दे अफेक्ट पर्टिकुलर सेक्टर्स. ठीक है. उसके बाद फिर जो है quantitative methods हैं, they affect the total volume of credit in the economy, and other one they just affect the side or direction की किस सेक्टर को देना है या किसको नहीं देना है. और लास्ट पे आप नंबर 4 पे उनके जो मेथड्स के नेम्स है, क्वालिटेटिव साइड पे मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन नेम्स दे देने हैं, एंड क्वांटिटेटिव साइड पे उनके नाम दे देने हैं, बैंक रेट, CRR, SLR, 3-4 नेम्स दे देने हैं. ठीक है. बस ये आपका 1 मार्क में भी आ सकता है या 3 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन. ठीक. अच्छा, इसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है, यू कैन प्लीज सी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. नाउ ये सिलेबस में नहीं है, और एक आगे दिया हुआ है, ये मैंने पिक्चर भी भेजी है. दिस डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक. मैं फिर ब्रीफली बता देती हूँ. आपने यू कैन राइट ऑन दिस पेज ओनली रीडिंग, नॉट टू बी लर्नड, बट वी शुड हैव द नॉलेज. नाउ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है कि कंट्री के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है, एक्सचेंज माने करेंसीज हैं, जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं, उनका जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज आर हैंडल्ड बाय द RBI. मतलब फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, वो कमर्शियल बैंक्स इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं. दे आर टू बी डन हैंडल्ड बाय द RBI ओनली. ठीक है. गोल्ड का कितना स्टॉक रखना है, नहीं रखना है, कितना गोल्ड कंट्री में आया है, नहीं आया है, ये सारा चीज़ें जो है दे आर हैंडल्ड डन बाय द RBI ओनली. और कंट्री के अंदर, ये हम लास्ट में करेंगे एक चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो अगर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे मान लो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ या £1 इज इक्वल टू मान लो 80 रुपीज़. तो अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है अबाउट दिस, तो RBI हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ दैट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम.
ये क्या होता है, ये एंड में आएगा, अभी अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है. इन सिंपल वर्ड्स की फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ऑल द मैटर्स, ऑल द थिंग्स दे आर परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई ओनली, एंड कमर्शियल बैंक्स दे डू नॉट हैव एनी इंटरफेरेंस इन दैट. वो अपने बिहाफ के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, सारा काम जो है वो आरबीआई ही करता है. दैट इज वाई कस्टोडियन लिखा है. कस्टोडियन मतलब उसी के गाइडलाइन में होता है सारा. नेक्स्ट एंड लास्ट इज, ये ऑल दो अब सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई फील कि भाई एक नंबर में 1 मार्क में सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम. तो नाउ 5-6 डिफरेंसेस आर गिवन. कुछ भी नहीं करना है, सिंपल रीडिंग. अब आप, वी हैव रेड अ लॉट अबाउट ऑल दिस. वी अवरसेल्व्स कैन सिंपली डिफाइन क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. डिफरेंस इज कि हाउ मेनी सेंट्रल बैंक्स आर देयर इन द कंट्री, बताइए जरा. ओनली वन. आई एम आस्किंग, सेंट्रल बैंक कितने होते हैं, वो एक ही होता है, ठीक है, हर एक कंट्री में एक. बट कमर्शियल बैंक्स कैन बी मैनी इन नंबर, वो थोड़ी एक होते हैं. अपने घर के आसपास ही देखो, अपने सिटी में कितने सारे बैंक्स हैं, ऐसे पूरे कंट्री में कितने बैंक्स हैं. तो अपने आप से हम पॉइंट्स बना सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स कैन बी मैनी इन नंबर, बट सेंट्रल बैंक इज ऑलवेज ए सिंगल यूनिट. It is the apex institution, highest possible institution, and commercial banks are just subordinate units to them, to RBI. Subordinate होते हैं नीचे रह के काम करने वाला, ठीक है. तो commercial banks are secondary unit, secondary part of the banking system. They are the subordinate parts of the banking system. फिर who has the ability or right to what can we say, issue currency? Only RBI या central bank, ठीक है ना. और तो नहीं कर सकता. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स दे डू नॉट हैव एनी राइट टू इशू दिस करेंसी इन द कंट्री. वो सिर्फ उसकी सर्कुलेशन में मदद करते हैं, बट वो करेंसी को छाप नहीं सकते हैं, इशू नहीं कर सकते हैं. फिर है कि जो पब्लिक है, ऑर्डिनरी पब्लिक, वी पीपल, वी हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कमर्शियल बैंक्स ओनली, एंड आरबीआई डज नॉट हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द पब्लिक. हम सारे लोग अपने काम के लिए कहाँ जाते हैं, अपने आसपास के बैंकों में जाते हैं. हम नई दिल्ली नहीं चले जाते कि आरबीआई में जाके खाता खुलवाना है, ऐसा कुछ नहीं करते. तो दैट मीन्स पॉइंट क्या बन जाएगा कि आरबीआई डज नॉट डू या डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट डीलिंग विद द पब्लिक, बट कमर्शियल बैंक्स दे हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दे हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द पब्लिक. ठीक. फिर है कि जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है क्रेडिट को, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उसकी क्रिएशन करते हैं. क्रिएशन मतलब लोन के फॉर्म में उसको बना के आगे लोगों को देते हैं. ठीक. एंड देन लास्ट वन इज कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज एन एजेंट, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए बैंकर, that performs various functions on behalf of the government of India, but commercial banks they do not enjoy any such right. ठीक है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं. नो डाउट गवर्नमेंट के खाते हो सकते हैं, अकाउंट्स हो सकते हैं, बट जो उसका मेन बैंकर है वो आरबीआई ही है. तो कमर्शियल बैंक्स दे डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी और राइट टू बी द एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू बी द बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो बस ये सारा है हमारा. अगर इन केस मान लो आपको आ जाए पेपर में 1 और 2 मार्क्स में, तो यू शुड बी एबल, क्योंकि अभी सिलेबस में कई चीज़ों को लिख तो दिया है डिलीटेड, बट पता नहीं ना होता कि कई बार 1 मार्क में आ भी सकता है. सो एनी पॉइंट विच यू लाइक, विच कम्स टू योर माइंड, याद नहीं करना. अब यू जस्ट रीड वंस, ऑटोमेटिकली पॉइंट्स विल बी क्लियर इन योर माइंड. यू कैन गिव एनी पॉइंट. ठीक है जी. विद दिस आवर लेसन हैज़ कम टू एन एंड. thoroughly I have tried my best to tell about those things also which are no more in syllabus but which are relevant for the sake of understanding. ठीक. तो कल को हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो पार्ट स्टार्ट करेंगे. उसमें 2 चैप्टर्स आर देयर टू बी डन. एक है करना हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड सेकेंड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर. तो छोटे छोटे से सिंपल ईजी लेसन है. थोड़ा सा ये मैक्रो वाली मोनोटनी थोड़ी खत्म हो जाएगी ना, इतना सीरियस होके बैठे रहते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. उसके बाद अगेन वी विल कम टू दिस साइड. ठीक है. एंड टुमारो यू प्लीज सिट विद योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक. ठीक है. तो अभी मैं स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, थोड़ा सा कर देती हूँ. अभी 4 मिनट्स हैं. तो लेसन हमने जो करना है, बुक नहीं भी आपके पास नो प्रॉब्लम, आप यू कैन नोट डाउन. जस्ट चैप्टर इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इसमें से जो करना है यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक. We have to do how people become resource. You can please note down, क्योंकि बुक में तो many other things are given, so at that time you should not feel confused कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. Human capital formation. Out of this we have to do
how people become resource, how people become resource. And second topic which is to be done, that is role of human capital, role of human capital in economic development, role of human capital in economic development. Okay, these two topics are the subject matter of this chapter. But now you see, if you see it carefully, क्या हो रहा है यहाँ पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स. कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल.